Okay, okay. Good morning, Deepak. 7 to 8. Okay. Strength is quite low. Is it because of Monday effect? So Saturday and Sunday and Monday is taken as a relaxed day? Okay, okay. Just take one more minute. Let others join. We'll start our session. Okay. Anybody just tell me what was the last topic that we have discussed? Yes. Somebody please unmute and say, okay, what we were discussing in the last class? Ma'am, undue influence. Very good, very good. So you were talking about voidable contract, right? Yes, We have ma'am. discussed coercion and undue influence, Yes, right? ma'am. Very good, Sushmita. Okay, Mitakshi, Mitakshi, am I audible? Yes. Yes, ma'am. Okay, Mitakshi, you tell me if if there is a situation when the person is dominating the other person to sign a contract, what this is called? Ma'am, void Domin contract. No, it is voidable. It is not void. It is voidable. But let me know like what that name of the contract will be when the situation is such that another person. Okay, I'm not Sir Nisha. It's fine. Okay, I take your good morning. If a person is dominating other to sign a contract, what that situation is? Yes. मैम फोर्स Oh, अनफोर्स मतलब फोर्सफुली वो साइन करा रहे हैं ना, तो वो इलीगल हम्म, हुआ लाइक। तो हाँ ऐसा। वो वॉइडेबल हुआ। वो वॉइडेबल इसलिए हुआ कि अगर वो मान लेता है तो वो वैलिड है, अगर वो कोर्ट में जाता है तो वो वॉइड बन जाता है। बट वो सिचुएशन को क्या कहेंगे बेटा कि जब किसी ने अपनी पोजीशन को यूज करके किसी दूसरे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि लाइक इफ आई से कि आई एम सेइंग नो, इन दैट टोन इफ पर्सन इज यूजिंग हिज पावर एंड पोजीशन, उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? इज इट कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस? व्हाट इज दैट? Sorry, ma'am. कोवर्जन। No, it is not coercion. It is undue influence. Please understand, undue influence is the person is dominating other with a mental pressure, with a position misuse, with a power misuse. That all position misuse, power misuse, or dominating other, or there is a mental pressure. There is no physical force. That is undue influence. But when the person is forcing another person with a physical threat, with a physical force, with a gun point, all that is coercion. तो क्या क्या डिफरेंस हुआ? कोर्जन में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराने के लिए वो फिजिकल फोर्स यूज कर रहा है, उसकी मार पिटाई कर रहा है, वायलेंस कर रहा है, वो इस तरीके से कर रहा है कि जिसमें उसकी पोजीशन नहीं है, बट वो एक अपने आप को गुंडों को लेके जाके कर रहा है। दैट इज समथिंग कोर्जन, जहां पे फिजिकल फोर्स यूज हो रही है, राइट? मेंटल प्रेशर इज कि आपने उसको प्रेशर कर दिया फ्रॉम द मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी मेंटल स्टेट इज अफेक्टेड। आपने कोई मार पिटाई नहीं की, आपने कोई गन पॉइंट पे नहीं रखा, आपने उसको किडनैप नहीं किया है। तो किडनैप करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करना इज कॉल्ड कोर्जन। बट व्हेन पर्सन इज फ्री रोमिंग हियर एंड देयर ऑन द स्ट्रीट्स, बट समवेयर इन द माइंड दैट सिचुएशन इज गोइंग ऑन, आई हैव टू साइन। अब जैसे कि नॉर्मली मूवीज में होता है, अगर मार पिटाई करके वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है कि साइन करो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी, तो वो अपने गुंडों को लेके जाके अपना बोर्ड लगा देता है, दैट इज कोअर्जन। अगर कोई ऐसे कहता है कि ठीक है अगर तुम साइन नहीं करोगे तो तुम्हारा जो है मैं फैमिली को प्रॉब्लम दूंगा, तुम्हारी बेटी को उठा लेंगे, दैट इज मेंटल प्रेशर। उसने फिजिकल फोर्स नहीं यूज की। सो व्हेन देयर इज ए मेंटल फोर्स यूज्ड, इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। When there is a physical force used, it is coercion. Yes. Anybody who wants to say something, anything? Yes. Please say. Is it clear? Okay. Okay. Fine. Fine. So let us talk about third type, right? Today I am going to talk with you fraud and misrepresentation. I would be trying to explain it with the examples, but tell me if it is not clear. You please ask it.
without any hesitation, we are sharing what kind of relationship? Yes, somebody please tell. Your and my relationship is based on? Professional. No, no. In legal words, in legal word, there is a word called, what is that? Professional तो है ही. Yes. एक वर्ड कराया था आपको, अगर किसी को याद है तो प्लीज रिकॉल द मेमोरी एंड टेल मी. योर एंड माई रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन? यस. Yes, somebody please tell. Okay, I'm going to give you hint. It is, Installment. no, it is FIDU. Somebody please. Fiduciary. Fiduciary. Very good, very good. Who replied it? Fiduciary, very right. Our relationship is based on faith, trust, and love, affection, care. I am bestowed with the caring attitude that you all are my bachas, and after MBA, you have to ensure that whatever knowledge is transmitted, you will be showcasing that at the time of interview. So our relationship is based on trust. We are trusting each other. I am trusting that whatever I am teaching, you must be practicing somehow, and you are trusting that whatever ma'am is teaching is right concept. So trust, faith, care, love, affection is what are the basis of our foundations of the relationship. And this relationship has a legal word, that is fiduciary. Who replied it? Who replied it? Yes. मेरी screen. Yes, ma'am. Okay, okay, good, good, good. Jagriti, Sushmita. Very good, bache. Keep up all the things, right? Please understand, whenever we are talking about any particular topic, you should revise it. Though we are meeting 3 times in a week, but make it a point that you are studying somehow these kinds of topics every day. Speak up in front of mirror by standing there and speak up for the confidence level. This speaking up is one of the most important strategy that is going to play once your MBA is over. So speaking up with a confidence, with a pause, with a aura is very much required. Very much required. Tell me, if I will not be able to express my knowledge to you, am I useful to you? Tell me honestly. Yes. No, Tell ma'am. me honest. No, not at all. अगर मैं अपनी बात, very true, very true. Same way, if you will practice it, it is not coming in a day practice. It is somehow that I'm into this profession from last 15 years. Along with it, I have started practicing the moment I was doing my bachelor's and master's. It is somehow that passion which has driven me to come into this profession. Otherwise, speaking up and maintaining the knowledge up to date is one of the most tough job in these days, in these challenging times. So most humble request to all of you, whenever you are reading something, you make it your habit that you have to speak up 10 to 15 minutes every day. You speak up law topic, you speak up organizational topic, you speak up any mathematics topic, you do some questions. Speak up is most important. It may be speaking up even in news of written in the newspaper. You may take up a news like how Reliance is going to sell its own share into Silver Say, how much shares have been sold. It may be any news of your interest also. It may be sports news, how IPL and the Dubai team have arrived and what are their strategies to play. So look at this. I have given you n number of examples. The most important of all the examples are you should speak up. I know you guys have great potential. Though we are meeting very soon, your colleges will be opened up very soon. There is a declaration given by central government, and accordingly, Jaipur would be dependent upon Rajasthan government guidelines. But very soon we are going to meet. But please understand, we are knowing each other from last 1 month. It's been like almost 1 month that our classes have been started. Just a week left. So my request to all of you is speak up at least for 10 minutes every day of any topic, not necessarily that you take up coercion and undue influence to speak up, any topic of your choice. Okay. Yes. Let's continue with our session now.
we are supposed to discuss 5 situations, bache. We are supposed to discuss when contract will be voidable. So we have discussed coercion, we have discussed undue influence, right? Just a minute, right? Now today I am going to start with fraud. Now, fraud word is something very oftenly we say it. We say it and we hear it from many of the people around us. Fraud. Let me give you one example to start this topic first. You must have received somehow banking messages that we are not going to send you any message. If any message regarding the payment, sharing the password, sharing the credit card details come to you, we are not sharing it. We are not asking you for those details. So now please understand, we are actually talking about fraud because that is happening. That is happening around the world. Look at this example. How many of you have heard this company, Speak Asia? Yes. I'll explain with the example. I'll cover up this concept with this example. Let me start with this company first. Any student having an idea about this company, Speak Asia? Yes. No, ma'am. Okay. No, ma'am. All right. All No, ma'am. right. Not a problem. See, this company was based on survey kind of thing. What exactly their business was? That you become our member, you pay us this amount, that is 11,000, and we will be giving you survey. If in a month 4 weeks are there or 5 weeks are there, you will get 4 or 5 survey and will pay you 1,000 per survey. दिस वॉज द पॉलिसी कि आप हमारे मेंबर बन जाओ 11,000 देके, और हम आपको मंथ में अगर 4 हफ्ते आते हैं तो 4 सर्वे आपके पास आएंगे, और अगर 5 हफ्ते आते हैं तो 5, तो हर सर्वे का हम आपको 1,000 पे करेंगे. एंड दैट कंपनी वॉज टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कंपनी. उसने क्या किया, ऐसे ही मेंबर्स बनते गए. इट वॉज लाइक ए चिट फंड कंपनी, जैसे सहारा का चिट फंड हुआ था. जुड़ते गए. कुछ लोगों को स्टार्टिंग में ऐसे वेट होता था कि आज 12 बजे सर्वे आने वाला है, अब जागना है. 12 बजे के बाद वो क्या ऑप्शन है वो कुछ नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं. अगर 20 क्वेश्चंस आए, टिक 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 किया, सबमिट किया, यस अब नेक्स्ट वीक तक हमारे अकाउंट में 1,000 रुपए आ जाएगा. कुछ टाइम तक ये बिजनेस चलता रहा. पीपल वर क्रेडिटेड विद द अमाउंट. लोगों को ये लगा कि 11,000 साल का लगाने के बाद मुझे 48,000 से 52,000 की इनकम है. तो दिस इज नॉट एट ऑल रॉन्ग. मुझे मंथ का 4,000 फ्री का मिल रहा है. मैं पढ़ा लिखा हूं या नहीं हूं, सर्वे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्वेश्चन है, ऑप्शन है, टिक. तो इट वाज लाइक दिस. पीपल वर अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या हो रहा है, बट पैसे आ रहे हैं. एंड इवेंचुअली इस स्कीम के सक्सेसफुल होने के बाद कंपनी सेकंड फेज में आ गई. कंपनी ने कहा कि अगर आप कोई मेंबर बनाते हो तो हर मेंबर का हम आपको 4,000 रुपये देंगे. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर स्कीम कि आप कोई अपने घर का मेंबर जोड़ लो, आप भी कमाओगे वो भी कमाएंगे. इट इज लाइक ए चेन ऑफ नेटवर्किंग. दिस काइंड ऑफ स्कीम हैज ल्योर्ड मेनी पीपल कि मेंबर ही तो बनाना है. तो इट वाज लाइक कोई फ्रेंड है, वो कह रहा है कि तुम्हें पता है मेरे अकाउंट में, वो अकाउंट का दिखा के कि देखो स्पीक एशिया ने मेरे अकाउंट में इतने पैसे डाले हुए हैं. लोगों को लगा कि यस इट इज अ रियल कंपनी. तो 4,000 उसका जो मेंबर नया बनता था उसमें से 4,000 स्पीक एशिया कंपनी उसके अकाउंट में डालती थी. सो इट वाज अ चेन. आई होप यू अंडरस्टूड द केस. यस ना, हुआ क्या वो मैं बताती हूँ. इतना समझ आया, ये दो स्कीम समझ आई आपको कि कोई 11,000 का मेंबर बनवाता है तो उसमें से 4,000 आपको दे देंगे, कंपनी 7,000 ही रखेगी. यस Yes, ma'am. ओके. हुआ क्या, Yes, ma'am. हुआ क्या, दिस बिजनेस वेंट ऑन फॉर 10 months एंड पीपल वर वेरी हैप्पी. स्पीक एशिया, स्पीक एशिया, एंड दे वर स्पीकिंग गुड अबाउट स्पीक एशिया. इट इज लाइक ए सर्वे कंपनी, हमें क्या करना है. साथ में व्हेन द पर्सन वाज एडवोकेटिंग या उसकी एडवर्टाइजमेंट कर भी रहा है, तो इट वाज अ नॉर्मल स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास हु इज प्रमोटिंग द कंपनी. मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो अपने फ्रेंड को बता रहा है कि मेरे पापा ने स्पीक एशिया किया और मेरे नाम पे भी ले दी है वो स्कीम, और मैं भी वो सर्वे भर रहा हूँ. यानी कि मेरे पापा का सिस्टम फ्री होता है, उसके बाद मैं सर्वे भर देता हूँ, मेरे अकाउंट में भी आते हैं. इट वॉज लाइक जहां एक फैमिली की इनकम उन्होंने ये एंटिसिपेट की कि 48,000 होगी, 4 मेंबर फैमिली से बना लिए, तो इट वाज लाइक ए ह्यूज ह्यूज अमाउंट विच फैमिली थॉट कि हमारे पास आएगी बट नहीं आई.
Soon after 10 months there was a campaign, कंपनी का पता ही नहीं है. तो ह्यूज अमाउंट मेंबर बनते जा रहे हैं, सर्वे आते जा रहे हैं, बट अमाउंट नहीं आ रहा. वो सब टेक्नोलॉजिकली चल रहा है. उसके बाद नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैव बीन लॉन्च्ड. न्यूज चैनल्स ने इवन दुबई वहां तक भी गए कि सऊदी की बेस्ड कंपनी है, दुबई की बेस्ड कंपनी है, कहीं कोई उनका हेड ऑफिस नहीं मिला. टेक्नोलॉजिकल फेक कंपनीज, ऐसे कंपनीज को हम बोलते हैं. स्पीक एशिया इज वन ऑफ द शेल बेस्ड कंपनी. को क्या बोलते हैं? शेल कंपनी, जो थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. अगर आपको ध्यान हो, व्हेन यू टॉक अबाउट 3,75,000 कंपनीज वर ट्रीटेड एज शेल. जो मोदी गवर्नमेंट जब पहली बार इलेक्ट हुई थी उसने कंपनीज बंद की थी. 3,75,000 शेल कंपनी. शेल का मतलब होता है नॉट एग्जिस्टिंग इन रियलिटी. what those companies were doing? Now come to the main concept, fraud. Fraud is that you are cheating somebody with an intention to cheat. अगर सिंपलेस्ट लाइन में मुझे आपको मीनिंग समझाना है, it is a cheating with an intention to cheat is known as fraud. So fraud is when there is एक्टिव कंसीलमेंट. आज अगर मैं कह रही हूँ कि यस मेरा लैपटॉप बहुत अच्छा है, आप देखिए कि इसमें टच स्क्रीन है, इसमें ये नई विंडो है, जबकि मुझे पता है मेरा 10 साल पुराना है. मुझे अपने सिस्टम को बेचने के लिए क्या क्या बातें बोल रही हूँ कि नया सिस्टम है. दिस इज समथिंग फ्रॉड. So when you talk about concealment of facts, when you're talking about cheating, when you are lying something, when you are making yourself as compulsive liar, you are doing nothing but fraud. So very important word is compulsive liar. Compulsive liar का मतलब जिससे झूठ बोलना ही है. तो झूठ बोल के जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, that is called fraud contract. Is it clear? So the only intention is to cheat somebody to enter into a contract. गलत बता दिया. आपको मैं बोल रही हूँ कि I have US based watch. You want to buy it? आपको US वॉच का बड़ा शौक है. मैंने कोई भी वॉच नॉर्मल मार्केट से खरीद के यूएस की बना दी और यूएस की वॉच को यूएस के रेट के हिसाब से बेच दिया. आई नो आई हैव चीटेड यू. सो चीटिंग इज नथिंग बट फ्रॉड. नंबर ऑफ कस्टमर्स आर सच जो कहते हैं कि हमारे पास कॉल आया, उन्होंने बोला कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, आप नंबर शेयर करिए. So why I am giving you all this example? Because these are the examples of fraud. It is complete fraud. Fraud refers to all those acts which are committed by the party to make sure that they are cheating, they are lying, they are deceiving something. Deceiving का मतलब ditch करना, गलत गलत तरीके से contract sign कराना. Right? Clear? Meaning is clear, beta? Yes. When a person is using wrong thing to make another person enter into a contract, that is called fraud. Person is knowing it is not true. मैं बता रही हूँ कि मैंने सिस्टम में झूठ बोला है कि ये नया सिस्टम है, इसमें विंडो बेस्ड है, जबकि मेरा सिस्टम 10 साल पुराना है. तो मैंने बिल भी बनवा लिया और उसके बाद मैंने वो आपको बेच भी दिया. दैट इज कॉल्ड फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट. जैसे ही आपको पता चलेगा तो यू हैव ए राइट. मैं उस पर भी आऊंगी कि क्या राइट है आपके पास, बट फ्रॉड का मीनिंग इज क्लियर. यस बच्चे? यस मैम. ओके ओके ओके. तो फ्रॉड में जितना भी आप ऑनलाइन स्कैम देखते हो कि लुक एट द सिचुएशन कि जहां पे हमें कॉल आया, हमने उसके अकॉर्डिंगली एक्ट किया, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दे दिया और हमारे अमाउंट जो है सारा चला गया. दिस इज फ्रॉड. क्योंकि बैंक नेवर आस्क सच डिटेल्स. दे कीप यू वार्निंग ऑल द टाइम, बट आप उसके बेसिस पे कॉल आ गई और आपने शेयर कर दी अपनी डिटेल्स, अपने पासवर्ड, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर. दैट इज कॉल्ड fraud. Okay beta? Yes. Now when fraud is clear, come to the rights. So what are the essential features? Yes, please understand. What are the essential features? It must be a false representation. It is very true. It must be a false. The information that is given by the party, for example A is going to enter into a contract with B. Speak Asia ने बोला कि हम आपको सर्वे का पेमेंट देंगे, बट उनको भी पता नहीं देंगे वो. इट इज फॉल्स. पार्टी इज अवेयर कि मैं फॉल्स कमिटमेंट कर रहा हूं, मैं फॉल्स प्रॉमिस कर रहा हूं, आई एम इंटेंडिंग टू चीट समबडी. दिस इज फ्रॉड. राइट? इट मस्ट बी रिलेटेड टू ए फैक्ट. यस. जो चीज जिस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट करवाना है उससे रिलेटेड होना चाहिए.
जैसे आज मेरे को अगर अपना लैपटॉप बेचना है ना, तो मैं लैपटॉप के रिगार्डिंग झूठ बोलूंगी आपसे। आई विल नॉट बी मेकिंग एनी लाई रिगार्डिंग द मोबाइल फोन। जो भी पर्टेनिंग ऑब्जेक्ट होगा उसके रिगार्डिंग झूठ बोला जाएगा, राइट। इट मस्ट बी विद एन इंटेंशन टू चीट अपॉन इट, ताकि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर ले। दूसरे को इस तरीके से इंफॉर्मेशन देनी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले, वो आपकी बातों में आ जाए। अच्छा, नया लैपटॉप है मैम, 20,000 का बेच रही हैं, वेरी गुड। लेनोवो का है, नया है, 2 महीने पहले लिया है, मैम बेच रही हैं, ये तो मार्केट में 50,000 का है। तो आई एम मेकिंग स्टेटमेंट सो दैट अनदर पर्सन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। सबसे बड़ी मंशा क्या है कि दूसरा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले और मुझे अमाउंट दे जाए। तो जितने भी आप चोरी के प्रोडक्ट्स देखते हो ना, जैसे इन दिल्ली देयर इज वन प्लेस, गफ्फार मार्केट। गफार मार्केट इज नोन फॉर द मोबाइल थीविंग, जिसमें आपको बिल नहीं देंगे वो। इवन वो जो मोबाइल क्लेम कर रहे हैं, वो हो सकता है मोबाइल भी वैसा कंपनी का ना हो। तो नॉर्मली वहां पे आपको 4,000 का मोबाइल फोन इतना बढ़िया मिल जाएगा, आप कहेंगे हाँ ये कंपनी का वैसे मार्केट में 30,000 है, आपको क्यों 4,000 का मिल गया? क्योंकि ना तो उसका बिल है, चोरी का है, और आपको गलत देके वो ले रहे हैं। तो समथिंग, दोज प्लेसेस आर बेसिकली फ्रॉड प्लेसेस, right? Representation must have been made with the knowledge of its falsity. Yes, जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको पता है कि मैं गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि whenever he is telling something to be, he knows it is not going to be true. It is something that I am cheating and I am sharing. It is not. आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, पर्सन को पता है कि मुझे इसी लाइन से स्टार्ट करना है ताकि दूसरा पर्सन थोड़ा सा पैनिक आए और इंफॉर्मेशन दे दे। या आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई बोनेंजा डिटेल्स हैं, या आपके क्रेडिट कार्ड को सर किसी ने मिस यूज कर लिया है, उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो आप जो कर रहे हो, दूसरा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा, बट आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इट इज बेसिकली, यू नो दैट द इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, बट स्टिल यू आर मेकिंग इट। और दूसरी पार्टी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, दे हैव सफर्ड सम लॉस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। अब स्पीक एशिया की अगर एग्जांपल दें, तो जिसने भी ये पैसे लगाए, कुछ लोगों को जिनको पैसे 6-7 महीने तक आते रहे, ठीक है, उसके बाद साल तक जो बिजनेस चलता रहा कि पैसे आएंगे आएंगे आएंगे, वो नहीं आए, दैट इज समथिंग, वो पार्टीज ने अपना पैसा लगाया था, उनका नुकसान हुआ है, राइट? क्लियर? सो दैट इज फ्रॉड। यस बच्चे, इज इट क्लियर? फीचर्स आर क्लियर बेटा? यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ओके। ma'am. Now what is the right? Right is, this is a voidable contract. He can resign. Resign का मतलब होता है cancel. He can cancel the contract the moment he came to know कि it is wrong. लता मैम ने मुझे लेनोवो का जो मोबाइल दिया है, लैपटॉप दिया, वो 10 साल पुराना है, तो आप रीजनेबल टाइम पे कैंसिल कर दो। तो फर्स्ट राइट इज अवेलेबल, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, इमीडिएटली कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा राइट है, यू कैन इंसिस्ट द परफॉर्मेंस। नहीं, अब तो आपको मैंने पेमेंट दे दिया है, मुझे तो वही वाला आप जो है लैपटॉप लेके दोगे, लेनोवो रीसेंट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 वही लेके दोगे। तो यू कैन आस्क फॉर द परफॉर्मेंस, दैट पर्सन हैज टू गिव इट टू यू, बट दैट इज बेसिकली व्हेन इट इज गोइंग इनटू अ कोर्ट, ही कैन क्लेम डैमेजेस। आप जितने भी आपके लॉस हुआ है, दैट कैन आल्सो बी क्लेम्ड। Look at this video which I wanted to show you. This is all about your fraud, right? Let me show you one video so that this thing is very much clear to you. Yes, just a minute. Look at this.
Okay, now tell me who has understood this video, though it was not a voice based, it was just a cartoon which was being showcased. Yes. How many of you have Me, understood ma'am. it? Online scam, dishonest means, attractive schemes, and eventually taking your money. I was looking, yes, basically, when we talk about certain products online, we have to make sure that it is genuine. Otherwise, this is nothing but a fraud. I hope it is clear. Fraud is clear to you. Fraud is when any party is entering into a contract with an active concealment of information, with the lie information, with the cheating purposes. So all those dishonest means are called fraud instruments. तो आपने झूठ बोला, आपने गलत चीज बताई, आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, वो पर्सन आपका विश्वास करके वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड. तो फ्रॉड में राइट्स हैं, वो कैंसिल कर सकता है, वो अपनी परफॉर्मेंस मांग सकता है कि मुझे वही चीज चाहिए. राइट. यूएस की वॉच के नाम पे आपने लोकल वॉच सेल कर दी यूएस वॉच के नाम पे, तो जो आपका फ्रेंड है वो कह सकता है कि मुझे तो यूएस की वॉच चाहिए, अदरवाइज मेरा अमाउंट और मेरा लॉस वापस करो. तो दैट इज समथिंग ही कैन आस्क फॉर. बट क्या कब नहीं मांग सकता, कब उसका राइट खत्म हो जाएगा? लेट मी टॉक अबाउट दिस. कि कैन दिस राइट ऑफ रिसेशन, रिसेशन का मतलब होता है कि वो उसको नहीं कैंसिल कर सकता. कब? जब उसने ऑर्डिनरी डिलीजेंसी यूज की. उसको पता लगाना चाहिए, क्योंकि लॉ ये कहता है लेट द बायर बी वेयर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेट द बायर बी अवेयर. अब इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स आ गई हैं कि अपना पासवर्ड मत शेयर करो, मत शेयर करो. आज अगर आपने शेयर कर दिया तो बैंक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आपने ड्यू डिलीजेंस यूज की, एक्सेसिव डिलीजेंस यूज करते तो इट वुड नॉट हैव बीन हैपन. तो आपको डिलीजेंस तो यूज करने पड़ेगा, अपना दिमाग तो यूज करना पड़ेगा. आज मैं कह रही हूँ कि मेरा लैपटॉप अवेलेबल है, आपको आके चेक तो करना पड़ेगा कि इज इट ओल्ड वन, पता लग जाता है व्हेन देयर आर सर्टेन सेटिंग्स कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कौन सी है, ईयर ऑफ परचेज क्या है, उसका बिल ओरिजिनल बिल नंबर डाल के. देयर आर सो मेनी थिंग्स थ्रू विच फ्रॉड कैन बी टैकल्ड अपॉन. आपने अपना ऑनलाइन सिस्टम दे दिया, आपके अमाउंट निकल गया, अब आप बैंक के पास जाओगे, बैंक कहेगा नो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. प्लीज अंडरस्टैंड. सो रिसेशन इज नॉट अवेलेबल. राइट. और अगर आपको बहुत टाइम बाद पता चला कि ये फ्रॉड हुआ है आपके साथ, पीक एशिया, लोगों को पैसे आते गए तो ठीक था, 1 साल आपने वेट किया कि हाँ भाई हमारे पैसे नहीं आ रहे तो अब हम कोर्ट में जाएंगे. अगेन दोज आर नॉट एग्जैक्टली टाइम बार डेट्स. तो आप अगर टाइमली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हो तो इट इज फाइन. लुक एट दिस, रीजनेबल टाइम पे आपको कैंसिल करना है. वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनेबल टाइम. लुक एट दिस वर्ड. रीजनेबल टाइम का मतलब है कि ये नहीं आपने चीज यूज कर ली और उसको साल हो गया, साल के बाद आपको पता चला कि इट इज नॉट ए राइट वॉच. रीजनेबल टाइम मीन्स विद इन द ऑर्डिनरी डेज ऑफ 7 to 14 बिजनेस डेज. So reasonable time has been defined by law, that is 7 to 14 business days में you have to cancel down the contract. अगर आपने reasonable time पे exercise नहीं किया तो you cannot take the benefit. राइट. अगर आपने थर्ड पार्टी से उसका इंटरेस्ट ले लिया, आपने आपके फ्रेंड ने आपको बेचा, आपने आगे बेच दिया, तो अगेन दैट राइट इज नॉट अवेलेबल टू यू, क्योंकि आपने तो सेल ही कर दिया. आपने मेरे से लैपटॉप लेके आगे किसी को सेल कर दिया, तो अब आपका राइट ऑफ क्लेमिंग डैमेज इज नॉट अवेलेबल टू यू. तो आप उसको रिजेक्शन नहीं कर सकते, आप उससे डैमेजेस नहीं मांग सकते हो. वे द पार्टीज कैन नॉट रिस्टोर टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. यस, बिल्कुल. अगर आपने प्रोडक्ट ले लिया, आपने उसको प्रोडक्ट दे दिया, तब भी अगर दोनों में से किसी ने भी एक प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा यूज कर लिया, प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है आज की डेट में, तब भी आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते. जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे मेरा वो आप जो है मेरा लैपटॉप ले लो और मुझे एप्पल i7 दे दो. आपको 7 मुझे मोबाइल देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू टेक माई लेनोवो. मैंने एप्पल का फोन यूज कर लिया, उसको सेल भी कर दिया आगे, then I am not exactly coming into this contract anymore. Right? Clear बच्चे? So these provisions में उसके पास राइट नहीं है, ना ही कैंसिल करने का, ना ही डैमेज मांगने का. Yes बेटा. Any doubt? No, Yes ma'am. बेटा. Is it clear? So when you talk about fraud,
प्लीज अंडरस्टैंड दैट फ्रॉड इज समथिंग चीटिंग. अगर आपको एक सिंपलेस्ट लाइन में मुझे समझाना है तो फ्रॉड इज रिलेटेड टू चीटिंग द पार्टी टू मेक हिम और हर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. तो ऑनलाइन स्कैमर्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग और शेयर पासवर्ड शेयरिंग, all those are examples of fraud, right? Yes. Next is misrepresentation. Please understand. I'll talk about this as a meaning. Misrepresentation is defined under section 718. 17 में it was fraud. Please understand. This is section 17 fraud. Section 18 misrepresentation. Misrepresentation is the presentation of the facts are done in a wrong way. Please understand, misrepresentation is when parties are entering into a contract without knowing this is the wrong information I am passing. So it is somehow non-intention of cheating. Very very important feature कि आपने गलत तो किया है बट आपको ही नहीं पता आपने गलत किया है. Non-intention of cheating. The very first meaning of misrepresentation is when parties are entering into a contract. Certainly two parties are there, they are entering into a contract. One party is giving a false information but intention was not to cheat. So it was, उसको लगता था कि मैं ठीक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, राइट, और ये ठीक इंफॉर्मेशन है, जबकि दूसरा जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है प्रोडक्ट लेने के बाद उसको लगा कि ये गलत इंफॉर्मेशन है. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी. ए ने कहा कि मेरी लैंड में जो है ना देर इज वन लैंड और इसमें जो है ना मेरे को हर बार 500 kgs ऑफ राइस निकलता है. मैं जब भी अपना काम करता हूँ सिंसियरली तो मेरी जमीन में 500 किलो राइस निकल जाता है 6 महीने में. बी सेड ओके रियली, तो यू सेल मी दिस लैंड. ए ने बी को लैंड सेल कर दी फॉर ₹5 लाख. बी ने वो लैंड यूज किया, बी का तो 300 kg राइस निकला. अब दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन. उसको लगा था कि मेरा जितना निकलता है बी का भी उतना ही निकलेगा. हो सकता है बी के फर्टिलाइजर्स में प्रॉब्लम हो, बी के उतनी नॉलेज ना हो फार्मिंग की, या बी को उतना उस टाइम पे देयर इज सम सिचुएशन ऑफ नेचर क्लाइमेट, कई बार होता है. सो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर डिपेंडेंट. ए ने जब इंफॉर्मेशन दी उसने अपनी इंफॉर्मेशन ठीक दी. मैं लैपटॉप अगर आपको सेल कर रही हूँ, माई लैपटॉप इज फास्टेस्ट वन, मैंने अपने हिसाब से कह दिया कि मेरा लैपटॉप अच्छा चलता है, आप इसको काम करके देखिएगा. आपने आए, आपने यूज किया, आप लेके चले गए, आपने मुझे पेमेंट कर दिया, घर जाके इसमें वायरस आ गया, राइट, और सिस्टम स्लो हो गया. दिस इज समथिंग मिस रिप्रेजेंटेशन. प्लीज अंडरस्टैंड. इन माई केस माई लैपटॉप, माई इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू माई सेल्फ. सो इंटेंशन ऑफ चीटिंग इज नॉट देयर. आपने घर पे जाके यूज किया, आपके वायरस आ गया, आपने कोई पेन ड्राइव लगा दी. प्लीज अंडरस्टैंड, उस पेन ड्राइव में वायरस था, मेरा बिना पेन ड्राइव के बहुत अच्छी स्पीड दे रहा था, अब आपके जाके वहां पे स्लो हो गया. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन. तो आप कहेंगे कि मैम मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड आर वन एंड सेम थिंग. नो, आई एम फोकसिंग अगेन एंड अगेन कि misrepresentation is when the person himself believe that whatever information I am passing is a true. वो गलत नहीं दे रहा हूं मैं, राइट. सो विद दिस एग्जाम्पल मेरी इंटेंशन आपको जो लैपटॉप देने की है, आपने मेरे से यूज किया, आपने डिलीजेंट यूज किया, आपको लगा कि यस इट इज फर्स्ट वन, मैम इज गोइंग टू सेल, ओके आई विल बाय. आपने घर जाके इस विंडो को उड़ा के दूसरी विंडो इंस्टॉल की, अपनी सीडी डाल दी, सीडी में वायरस था, सिस्टम में वायरस आया और स्लो डाउन हो गया. नाउ यू कैन नॉट से इट इज अ फ्रॉड. प्लीज अंडरस्टैंड. यस यस बेटा, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. party is very much innocent. Yes, fraud में the party is a cheater. If you look at fraud, party is a cheater. Whereas you look at misrepresentation, party is very much innocent, very much innocent. उसको लगता है कि मैंने ठीक किया है, right? So all these contracts, land सेल कर दी, लैपटॉप सेल कर दिया, मोबाइल सेल कर दिया, उसको लगा कि मेरा जैसे चल रहा है मैंने वैसे ही बताया है. तो intention was not to cheat anyone, then that is called misrepresentation. Okay? Yes. So look at this. What are the essentials? Yes. Intention is not to deceive or ditch anybody. No doubt the information is false, but intention is not to cheat anyone. मैंने कहा कि मेरा सिस्टम फास्ट है,
वहां पे जाके स्लो हो गया, तो इंफॉर्मेशन तो फॉल्स हो गई, बट माई इंटेंशन वॉज नॉट टू चीट एनीवन। रिप्रेजेंटेशन इज रिलेटेड टू फैक्ट, जो चीज सेल करनी है उसके बारे में ही बताया है कि ये ऐसा है। लैंड में बताया कि मेरी लैंड में 500 किलो राइस निकलता है 6 महीने में, अब आपका 300 किलो निकला है, तो इंफॉर्मेशन तो फॉल्स हुई, बट इंटेंशन चीटिंग की नहीं थी, नॉट एट ऑल, राइट। रिप्रेजेंटेशन इज इंटेंशन टू अदर पार्टी टू एक्ट अपॉन इट, उसको लगा कि 500 किलो मेरा भी राइस निकलेगा, तो मैं ये लैंड ले लेता हूं। पर्पस क्या था वो इंफॉर्मेशन बताने का, कि वो पार्टी एक्ट करे और बोले कि हाँ मुझे लेना है, राइट। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जस्ट लेट मी नो। ए ने बी को एक घर बेचा है, ए ने बोला कि दिस हाउस इज थीफ प्रोटेक्टिव हाउस, यस, कि मेरे घर में चोर नहीं आ सकते। इज इट फ्रॉड और इज इट मिसरिप्रेजेंटेशन, टेल मी। यस, ए ने बी को एक घर सेल किया, उसने बोला कि इसमें चोर नहीं आ सकते, मेरे घर में थीफ प्रोटेक्टेड हाउस है। यस, Is misrepresentation? नो, इट इज फ्रॉड। किस घर, Misrepresentation. नो बेटे नो, लेट मी टेल यू व्हाई एंड नॉट। यस, ए ने अगर सेल किया है अपना घर इस बेसिस पे कि चोर नहीं आ सकते, तो कौन से घर में चोर नहीं घुसेंगे? कोई वॉल की ऊपर सीलिंग थोड़ा ना, पीओपी ऐसे थोड़ा ना करवाई कि घर में चोर नहीं घुस सकते। प्लीज अंडरस्टैंड। तो दिस इज फ्रॉड, कि मेरे घर में चोर नहीं घुस सकते, तो उसने कहा कि मेरे को तुम्हारा घर खरीदना है, तो दिस इज फ्रॉड। मैंने ये इंफॉर्मेशन दी कि मेरा घर इज वेरी मच प्रोटेक्टिव एंड इसमें अर्थक्वेक अफेक्ट नहीं करेगा। इज इट ए मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड? और अर्थक्वेक आया और थोड़ी बहुत हिलडुल हो गई आपके घर में फिर? यस, समबडी प्लीज टेल मी। ए बी को घर बेच रहा है, एक स्टेटमेंट मैं बता रही हूं जिसमें ए कह रहा है कि मेरे घर में चोर नहीं घुस सकते कभी भी। इज इट ए फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन? Fraud. Fraud. फ्रॉड, बिल्कुल, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना। कोई आप इस तरीके का डोर्स पे लगा दोगे, बट चोरों ने जिसने घुसना है वो कई तरीके से घुस सकता है घर में। आपने मान लीजिए मिरर लगा दिया, ग्लास वर्क लगा दिया, आपका कोई गेट ऐसा थोड़ा ना कि करंट लग रहा है, गेट पे करंट थोड़ा लग रहा है कि आप जब घुसोगे तो करंट लगेगा, या कोई स्ट्रेंजर घुस रहा है तो करंट लगेगा, या चोर घुस रहा है तो करंट लगेगा, कोई ऐसा यस, इट इज फ्रॉड। अब दूसरी स्टेटमेंट, ए ने बी को घर बेचा, उसने कहा कि इट इज अर्थक्वेक प्रोटेक्टेड, दिस बिल्डिंग इज अर्थक्वेक प्रोटेक्टेड। आपने घर उस बेसिस पे खरीद लिया, और जब अर्थक्वेक आया तो दो अर्थक्वेक तो आपको पता नहीं चले, थर्ड वाले अर्थक्वेक में आपको भी पता चला। नाउ टेल मी, इज इट फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन? यस, I Misrepresentation. think misrepresentation. Misrepresentation. मिसरिप्रेजेंटेशन, वेरी ट्रू। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग इतनी अर्थक्वेक प्रोटेक्टेड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट अगर डेंसिटी ज्यादा हो ना अर्थक्वेक की, तो हर एक को फर्क पड़ेगा। डेंसिटी इज समवेयर 2 or 3 और इन नेगेटिव, दैट मे नॉट बी अफेक्टिंग दैट बिल्डिंग, बट इफ इट इज 4, 5, 6, वो तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, वो आपका फैन हिलेगा ही हिलेगा, वो आपका ग्लास ऑफ वाटर हिलेगा ही हिलेगा। तो अर्थक्वेक प्रोटेक्टिव बिल्डिंग है, बट किस लेवल की, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो वो जो घर सेल कर रहा है, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज नॉट फ्रॉड। घर सेल किया, बट वो मैचिंग स्टैंडर्ड जब मैच नहीं करते हैं तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। तो आपको कैसे चेक करना है कि कोई फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन है? फ्रॉड में तो कंप्लीटली कुछ भी आपका सच नहीं होगा, दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी परफॉर्मेंस ऑफ फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, वो सच होगा ही नहीं। आपने वॉच पहनी तो आपको लगा कि यूएस वॉच है, आपने पहन ली और आपका जो है एलर्जी कर गई वो वॉच। यूएस की क्वालिटेटिव वॉच होती तो शायद एलर्जी ना करती। तो फ्रॉड है, कंप्लीट फ्रॉड है। मिस रिप्रेजेंटेशन कि आपका जितना प्रॉमिस किया था उतना रिजल्ट नहीं दे रहा, बट दे रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। So that is somewhere misrepresentation. Performance may be compared with the actual, with the standard one. कंपनी ने आपको बोला स्पीकेशन है कि हम आपको 4,000 रुपया देंगे, बट वो कट कटा के जीएसटी उन्होंने कुछ ना काट दिया और आपको 3,200 दिया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता। वो कंपनी ने दिया ही कुछ नहीं। दैट मीन्स परफॉर्मेंस वर्सेस नॉन परफॉर्मेंस का डिफरेंस इज ऑल अबाउट फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में certain comparison may be made between the standard performance and the actual performance, कि जो बोला था उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। 500 केजी राइस होंगे बट हुए 300 केजी, तो कंपेरेबल है।
बट फ्रॉड में क्या है, कंपेरेबल है ही नहीं। आपसे वो ऑनलाइन स्कैम कर रहे हैं, पेमेंट ले ली, प्रोडक्ट आया ही नहीं, तो व्हाट टू टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, राइट? तो ऑल दोज फ्रॉड में परफॉर्मेंस ही नहीं होती, सिर्फ चीटिंग होता है और पैसा लेना होता है। और मिसरिप्रेजेंटेशन में परफॉर्मेंस इज देयर बट लिटिल वन विच इज एज कंपेयर टू प्रॉमिस्ड वन। ओके बेटा? यस, एंड एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू वांट टू नो? यस, is it clear? Fraud and misrepresentation is clear to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so Yes, read ma'am. about it. Good, very good, very good. Read about it, and now your test must be visible at IMCRP at 11:10. So kindly attempt, though I have given you 1 hour to complete it, but complete it within the time before your next class. Okay, bache? Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, Is ma'am. it okay, beta? Thank you, Thank ma'am. you, thank you so much. Thank you so much.